Jai Hind to all of you students. As you know, in previous video we have completed our lesson number 6. Now from today itself we are starting our lesson number 7, that is a prayer for my daughter. Okay, it is written by W.S. Yeats. आज से हम लोग अपना लेसन नंबर 7 शुरू कर रहे हैं, अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, और इसके पोएट हैं W.B. यीट्स। ये एक पोयम है जिसमें एक पिता ने अपनी बेटी के लिए अपनी चिंता व्यक्त की है। ठीक है, now come to the question answer. What do the words the future year has come symbolize in the poem? The expression the future years had come symbolize the poet's vision of the advent of the barbaric age. He means that the future years of violence, blood and frenzy have come. These evil forces are emerging out of the murderous innocence of the sea. यहाँ पर क्या है, फ्यूचर को किस चीज़ों से तुलना की गई है? जो समुद्र में तूफान आता है उससे, मतलब एक बेटी का जीवन किस तरह से तुलना किया गया है। जो समुद्र में तूफान आता है, ठीक है, धरती पे जो बाढ़ आती है, उन चीज़ों से बेटी के जीवन की तुलना की गई है। Now come to question number 2. What is the poet's opinion about overmuch beauty? Does he want his daughter to possess it? यहाँ पोएट क्या बोलना चाह रहे हैं कि क्या आवश्यकता से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा सुंदरता अच्छी होती है, और क्या वो चाहते हैं कि उनकी बेटी भी उसी तरह से सुंदर हो? The poet desires that his daughter be granted beauty, but not so much beauty that may make a stranger's eyes distraught. He does not want his daughter to be extraordinarily beautiful because he thinks this distracts others. The women who are beautiful consider beauty an end in itself and ignore the qualities of the mind and heart. They lose their nature, kindness and also sincere love and affection. They fail to choose a right life partner for themselves. सॉरी, पोएट का क्या मानना है कि ज़रूरत से ज़्यादा सुंदरता अच्छी नहीं होती है। ज़रूरत से ज़्यादा सुंदरता व्यक्ति में घमंड भर देती है और वो अपने जीवन में सच और सही और गलत के फैसले लेना भूल जाता है। ठीक है, वो सच्चे प्यार को भी पहचानना भूल जाता है। उसे समझ में ही नहीं आता है कि कौन व्यक्ति उससे सच्चा प्यार करता है और वो किससे अपना जीवन साथी बनाए। Now come to next question. What is mean by the line may she become a flourish hidden tree? Explain. यहाँ पे may she become a flourish hidden tree का मतलब पूछा गया है कि इस पोएम में उसको किस मीन में लिया गया है। The poet wants that his daughter's soul should flourish and reach self-fulfillment like a flourished tree. The tree is symbolic of inner life as well as consistency at a place and life rooted in tradition. He wishes that his daughter should remain at a place and she should be rooted to her traditions. ठीक है, फ्लोरिश ट्री मतलब उस पेड़ से है जो बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, और पोएट यहाँ यही चाहते हैं कि उनकी जो बेटी है वो उसी तरह से हो कि जो ज़मीन से जुड़ी हुई हो, सबका रेस्पेक्ट करना जानती हो और अपनी ज़िंदगी के सही फैसले लेना जानती हो। इस पूरी पोएम में पोएट ने यही समझाया है कि किस तरह से उन्होंने अपनी जीवन को बताया है कि उनकी बीलाविड उन्हें छोड़कर चली जाती है क्योंकि वो बहुत सुंदर होती है और पोएट उतने सुंदर नहीं होते हैं, तो उनकी बीलाविड उन्हें छोड़ के चली जाती है। फिर उनकी शादी किसी और से हो जाती है और उनके एक छोटी सी बेटी होती है। ठीक है, और उस बेटी के लिए वो चाहते हैं कि उनकी बेटी के साथ ऐसा कुछ ना हो कि उसे अपना ट्रू लव खोना पड़े। ओके, तो वो यही चाहते हैं कि उनकी बेटी ना तो ज़रूरत से ज़्यादा सुंदर हो और ना ही बिल्कुल अगली दिखे। ज़रूरत से ज़्यादा सुंदरता व्यक्ति में घमंड भर देती है और पोएट नहीं चाहते हैं कि उनकी बेटी में थोड़ा सा भी घमंड हो अपनी सुंदरता को लेकर। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाई इज़ द पोएट सो मच वरीड अबाउट द फ्यूचर ऑफ हिज न्यू बॉर्न डॉटर? पोएट अपनी नई नवजात बेटी के लिए फ्यूचर के लिए इतना चिंतित क्यों थे? द पोएम reflects the gloom of the poet and his fear of a stormy future of his daughter. He is worried about how will his daughter face the world which is becoming coarse and vulgar day by day. As this poem is written after the First World War, it reflects the post-war
frustration. He imagines the war drums which forecast the struggle for survival. He is worried about the devaluation of the worldly ways. He expresses it by symbolizing the terrible violent storm raging outside. He says that the future years, that is the years of violence and blood and frenzy, have already crept in. These future years are seen by his imagination as emerging out of the murderous innocence of the sea. Therefore, he feels that his daughter must have a shield for protection. क्यों चिंतित थे वो? क्योंकि जैसे कि बताया अभी इसमें कि पोएम जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बात की है, ठीक है, और उसके बाद तो बहुत कंडीशंस क्रिटिकल हो गई थी, सब दूर दंगे फसाद वगैरह हो रहे थे, तो पोएट इसीलिए चिंतित थे अपनी बेटी के भविष्य को लेके कि ऐसा नहीं हो कि इन सब चीज़ों का, वार्स का, ड्रम्स का और ये जो वायलेंस चल रहा था, इनका असर उनकी बेटी के जीवन पर हो। वो चाहते थे कि उनकी बेटी का जीवन बिल्कुल शांतिमय बीते, सुखपूर्वक बीते, जैसा कि हर फादर चाहते हैं, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों का जीवन सुखपूर्वक बीते। वैसे ही पोएट भी चाहते थे कि उनकी बेटी का जीवन बिल्कुल शांतिपूर्वक बीते। ओके, I feel you all are understood the poem. Now it's enough for today. In the next video we will continue further. Thank you. Jai Hind to all.